Assalamu alaikum, everyone. All the panelists, the attendees, and a special welcome to our speaker, Mr. Imbasat Ahmed. I welcome you all. This is Sufia Qureshi. I welcome you all to this part, the webinar on role of technology in education. To begin with the webinar, I would like to hand it over to Mr. Abdul Razak Sheikh, who is the head of all projects AMP India. But prior to that, I would just brief you about AMP, our organization. AMP stands for Association of Muslim Professionals. We are an NGO working in the field of education, employment, and empowerment. AMP has its registered offices in India, USA, UK, and Australia. And we have a vision to positively impact the lives of 10 million people by 2030 and generate a society, a nation as a whole, which is advanced in education, socially progressive, and economically dynamic. Let me just brief you about how we are doing it, what are our various programs. We do it through our different projects like school development program. You can see the figures on the screen, but I just highlight how we are doing it since the past 12 years. The school development program, we adopt a school and try to develop it in terms of providing the skill development lectures, benefiting the students, training teachers, and having parenting workshops. 281,000 plus students have been benefited through us. Then another flagship program of ours is employment assistance. We are doing it through online and offline mode. And we have also come with a portal called empowerjobs.com, wherein the job seeker and the employers are brought onto one platform. We provide 100% verified jobs into the portal, and the job seeker can go search these jobs and can apply for that. We have been conducting job fairs and job drives individually at the places. And to enhance the employability of these students, we are regularly conducting employability training programs so as to make them industry ready with the current and the latest technologies and advancement. 21,000 plus candidates have been employed, and more than 20,000 degree students have been benefited through the employability training programs. And yet another endeavor of ours is having these web talks like the one that we are going to have today. Then another program of ours is scholarships and self-employment. Again, to brief you about this, we have launched a portal called indiazakat.com. Though we were doing it offline and providing scholarships to the students so that they can pursue higher education. But since the past 1 year after this crowdfunding platform have been created, 2.5 crore funds have been raised and 7,000 scholarships as well as the various causes have been met, alhamdulillah. Not only the education and the scholarship causes, what we are doing is we are taking the relief fund causes, the medical help, orphan education, and the livelihood. More than this figure is old, more than 1,500 higher education scholarships have been granted, and various families, 500 plus families have been transferred by offering them self-employment, that is the livelihood. Then we have AMP Resource Center, which is working day in and day out to develop the materials, the knowledge bank for the students as well as the stakeholders like career counselors. 660 plus career counselors have been trained, and 250 students have been counseled, and 50 plus documents have been given on career guidance. Then we have our own educational connect as well, wherein every year we award educationists and teachers, and we are partnering with NGOs for various programs. So you can have a look at the figures here. Just to brief you about our on-ground presence, currently AMP has more than 140, that is about 160 active chapters, which are spread across 26 states with 16 countries, 6,000 plus active members. And we are connected with various professionals through various social media platforms. More than 125,000 professionals have been with us.
You can join AMP by logging on to our website, that is www.ampindia.org, as a donor, as a contributor, as a person who's seeking some help, as a volunteer. AMP is all about its volunteers. So you can have the information, or you can write to us and can call us anytime. Thank you so much. Now over to you, Razak Bhai, for introducing our speaker and getting ahead with the webinar. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the audience, and a warm welcome to our guest today, Speaker Embasad Ahmed Bhai. Before I give an introduction of the speaker today, I just like to give a highlight of what Sufi was talking about right now. There was a slide which was shown about achievements of AMP in last 13-year time. They had multiple zeros in that. So many a time the question comes in mind, इतने बड़े number कैसे होते हैं? So currently AMP is running some 24 projects. Each project is taken care by different teams. Neither the team crossly in itself doesn't know what is being done by other team. So जो number achievement जो दिख रहा है आपको, वो actually अलग अलग टीम मिलके कर रही हैं, which are various volunteers across the country. They come together and want to give back to the society with that intention. This is what is being done. So the numbers which you saw, जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं, पहले 10 साल में हमने जो अचीव किया था वो एग्जैक्टली सेम नंबर हमने 11वें साल में अचीव किया था, और जो टोटल 11 साल में हमने अचीव किया था वो एग्जैक्टली हमने 12वें साल में अचीव किया. जब ये पेंडेमिक आया था सब कुछ रुक गया था, सब कुछ थम गया था. थैंक्स टू अल्लाह के AMP वाज ऑलवेज अ टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हम सारी चीज को मूव कर दिए ऑफलाइन से ऑनलाइन. AMP इज नोन इन द मार्केट फॉर डूइंग जॉब एक्टिविटी, जहाँ पर हम लोग लोगों को जॉब देने में मदद करते हैं. वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा जो हम लोग ऑफलाइन करते थे, जहाँ पर हर जॉब फेयर में AMP के 2-3 हजार बच्चे आते थे. अब क्योंकि पेंडेमिक आ गया था, हाउ टू डू दैट, मतलब हाउ टू हेल्प पीपल, लाइक right, we were the first pioneer again in that. We took the job fair completely online. हमने तकरीबन 6 ऑनलाइन जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया. आई एम कनेक्टिंग दिस टू द टूरिस्ट टॉपिक. एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट रोल है उसको AMP ने कैसा इनबिल्ड किया. पूरे पेंडेमिक में हम एक बार भी रुके नहीं, थमे नहीं. वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर आया था, दैट वाज डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस. लाइक पहले हम AMP में 1-2 घंटा वॉलंटियर करते थे. Alhamdulillah, because of work from home, we were able to do more community work. So technology is the biggest enabler. We can't shy away from them. We have to enable it. We have to go with it now. That is most critical part हमारे लाइफ में आने वाले टाइम पे. अगर हमें कोई भी चीज स्केलेबल करनी होगी, technology has been to be a crux of that. It will be an enabler for us to take our services, our work, our product to the market, to the people in the end. Now let me give a brief introduction of our guest speaker today, Embasad Ahmed. उनका अगर जर्नी देखोगे आप, एक रोल मॉडल की तरह है वो. उनका अगर बैकग्राउंड स्टडी करोगे, उनके बाद में अगर पढ़ोगे आप, तो आपको दिखाई देता है कि यस, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें भी इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. लुक एट हिज बैकग्राउंड. लाइक ही कम्स फ्रॉम बिहार, पटना. राइट एट द वेरी यंग एज उन्होंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया था. हमेशा ये कहा जाता है कोई भी चीज को अच्छे से सीखना होगा तो दूसरे को सिखाइए. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू टीच टू अदर्स, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बनता है. एंड दैट इज व्हाट एम्बेसद भाई हैज स्टार्टेड डूइंग दैट राइट एट द एज ऑफ 12. एक छोटी सी एज में उन्होंने अपनी जर्नी चालू की थी, जहां पर उन्होंने लोगों को सीखना सिखाने की बात की और चालू की. 2015 में उन्होंने IT से पास आउट किया. IT से पास आउट होने के बाद भी उनका एक ड्रीम होता है किसी का कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे. बट ही टुक अ डिफरेंट जर्नी. अब वो चाहते तो अपने स्टेट में, अपने इलाके में या कोई मेट्रो सिटी में जाके काम कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे. बट he took a very different part. He went all the way to Kashmir and started a coaching classes called Rice Institute. Alhamdulillah, you can actually, हम हमेशा टीवी में देखते हैं, सुपर 30 देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं. कभी जाके आप लोग गूगल करके राइस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़िए. अमेजिंग रिजल्ट. मतलब इन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, कंट्री के उस पार्ट में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ पर सर्विसेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर मैन पावर अवेलेबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया. एक इंस्टीट्यूट चालू किया जहाँ पर उन लोग ने कश्मीरी बच्चों को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में उन लोग ने उसको पास करके दिखाया. राइट, तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट. नाउ एक्सेलेंस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन. अब वो वहां पर भी नहीं रुके. देन ही थॉट करके, नहीं, देयर इज सम मोर थिंग आई शुड डू.
I should not restrict myself to my hometown Patna. I should not restrict myself to Kashmir only. Can I do it globally? Yes, there was a way to do it. Like, can I help people to get into it? Yes, there is a way to do it. Like, हम हमेशा एडटेक कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं, ये कंपनी ऐसा कर रही है, वो कंपनी ऐसा कर रही है. उन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी चालू की, findphilo.com. अब इस कंपनी के थ्रू वो क्या रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम जर्नी जो रही है फुल ऑफ रेवोल्यूशन ही रही है. हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ नया इतिहास क्रिएट किया है. अब उनकी जो नई कंपनी है, ये भी स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जो बहुत बड़ा गैप था वो फिल करने के लिए उन्होंने ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी को लॉन्च की है. नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्तिसात अहमद भाई. नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू हिम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या क्या कैसा किया उन्होंने, एंड हाउ कैन पीपल स्टूडेंट्स टुडे व्हिच आर लाइव ऑन the webinar today, and plus there will be thousands of students who will be watching this once we go on our Facebook and our YouTube platform, because AMP का जो reach out होता है because of different time zones. Normally हमारे webinars को post webinar activity में काफी लोग देखते हैं उसको. I want to hear from you कि how can there will be thousands of more इम्तिसात अहमद in the community going forward, ताकि कम्युनिटी के लिए एक बहुत सारे रिवोल्यूशनरी रोल मॉडल्स तैयार हो सके. उन लोगों को किस तरह से आपने जो जर्नी पे चले हैं उस जर्नी पे चलने के लिए उनको क्या करना चाहिए. बैक टू यू इम्तिसात भाई, योर टाइम स्टार्ट नाउ. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. I don't know if I deserve that such a lengthy introduction. मतलब I think sometimes I just feel कि मैंने तो just start किया है काम करना, मतलब ये तो मतलब जो प्लान है उस हिसाब से तो मैंने भी कुछ भी नहीं किया है. बट अल्हम्दुलिल्लाह whatever little I have achieved and whatever little I actually contributed, I'm proud of it. तो मैं मतलब लाइक मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम है. तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास कि आज के डेट में जहाँ पर टेक्नोलॉजी पहुँच गई है और अगर उस स्केल पर हमें पहुँचना है या उसके 50% पे भी हमें पहुँचना है, तो एक चीज़ तो है कि अपने अंदर एकदम जुनून जिंदा करना पड़ेगा. हम अगर सिंपल चाल चलेंगे तो उससे नहीं होगा, हमें छलांग मारनी पड़ेगी. आपने कहा लाइक 1000 इम्तिसात या इम्तिसात तो खैर कुछ भी नहीं है, मतलब 1000 हमें अगर लीडर्स क्रिएट करने हैं अपने बीच में, तो हमें बड़ी छलांग मारनी पड़ेगी. हमें एक जुनून लाना पड़ेगा, या कह सकते हैं एक पागलपन लाना पड़ेगा. क्योंकि सिंपल अप्रोच से, सीधे रास्ते से आप मतलब एक सक्सेसफुल लाइफ तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप अपने आसपास हजारों रोल मॉडल्स क्रिएट करना मुश्किल है. तो उसके लिए पहले मैंने जैसा कहा था आपसे कि मैं 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. पहला तो ये जो कि फिलो के मद्देनजर के हिसाब से है कि क्या हम करना चाह रहे हैं और कैसे हम करना चाह रहे हैं और उससे कैसे लोगों को फायदा होगा और लोग क्या उसमें और अपना फायदा क्रिएट कर सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट फिलो का बहुत सिंपल है कि कोई भी बंदा किसी भी पॉइंट पर कभी भी अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इस पैनल में बैठे हुए लोगों को आज रात में रियलाइज हुआ कि यार ये एक टॉपिक है, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में, बट क्यों ना इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानकारी लिया जाए. आपके घर में कोई स्टूडेंट है, उस बेचारे को अगले दिन एक टेस्ट देना है, या लेट से उसको टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करना है, या लेट से उसने अपनी कोई क्लास मिस कर दी और अब उसको लेक्चर पे समझ में नहीं आ रहा है या नोट्स देख के समझ में नहीं आ रहा है. तो ऐसे पॉइंट पे क्या करें? अब पॉसिबल तो नहीं है कि आपको हर अगले दिन, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई छोटी छोटी जरूरतें आती हैं, तो हर टाइम पर आप एक नया कोर्स खरीद लें, उसके लिए एक नया पैकेज खरीद लें, ये तो पॉसिबल नहीं है. या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करना शुरू करेंगे, तो जैसे जो लोग मैच्योर हैं उनके लिए आसान होता है गूगल पे सर्च करना, लेकिन कोई क्लास 8 9 का बंदा है, क्लास 6 7 का बंदा है, 10th 11th 12th के भी, तो अगर वो गूगल पे सिर्फ सर्च करने लगेंगे अपने एक यूनिक प्रॉब्लम को, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम सिर्फ 2 मिनट में उसका सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन उसके लिए उनका हो सकता है आधा घंटा लग जाएगा. कई सारे पीडीएफ डाउनलोड करने पड़ेंगे, बहुत सारे विकिपीडिया के लिंक्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि गूगल तो बैठ के आपके दिल में बात नहीं कर सकते हैं आप गूगल के साथ. तो ये प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम मैंने अपने स्टूडेंट्स के बीच में भी देखी. जब मैं कश्मीर में पढ़ा रहा था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो इनिशियली मैं हमेशा देखता था कि डे 1 जब हमारा क्लास स्टार्ट होती थी हमारी, तो उस टाइम पर उस दिन सारे बंदे काफी एनर्जेटिक होते थे, एकदम एक्साइटेड होते थे कि हाँ हमें पढ़ना है, अच्छे से करना है, सब कुछ करना है, सारा कुछ समझना है. लेकिन 2 3 4 महीने गुजरने के बाद क्या होता है कि हमेशा क्लास का टेम्परामेंट डाउन हो जाता है, मोमेंटम डाउन हो जाता है. अब क्लास के मतलब 10-15 बच्चे होंगे जो कि आपके साथ स्टिक कर रहे हैं, टीचर के साथ स्टिक कर रहे हैं, बाकी जो बंदे हैं वो बहुत पीछे छूट जा रहे होते हैं. और
वी एज एजुकेशनिस्ट, एज टीचर्स, हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम कहते हैं अच्छा नहीं, वो अच्छा पढ़ना नहीं है, वो पढ़ाई नहीं करता है, देखो ये टॉपर है, ये पढ़ाई करता है। तो हम ना ये फालतू की सेग्रीगेशन में लग जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये बुरा है, वो सही है, पढ़ाई करो, ऐसे बस बोल के निकल जाते हैं। बट इस पर कभी और से कुछ सोचता नहीं है कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी वजह बहुत सिंपल है। मतलब वो मैं समझिए कि पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब खुद मैं क्लास 9-10 में था उस टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो अब जाके मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है। ये मतलब मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, ये परफेक्ट भी नहीं हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, बट दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि हम लोगों ने एक बहुत ही लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया एजुकेशन का। लेकिन हमारा जो लीनियर स्ट्रक्चर एजुकेशन का है वो सिर्फ टॉप 3 to 5% ऑफ द क्लास को ही कैटर करता है। हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई ये करिकुलम है, ये सिलेबस है, इस दिन ये पहला टॉपिक स्टार्ट होगा, 6 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा, 7वें दिन आपका टेस्ट होगा। तो जो करिकुलम बनाता है वो टीचर है, वो एक चीज को पिछले 10 साल से पढ़ा रहा है, वो तो अपने हिसाब से पढ़ा लेता है। लेकिन टीचर ये नहीं सोच पाता है कि जो बंदा पढ़ने वाला है वो लाइफ में पहली बार इस चीज को सुन रहा है मेरे से। तो मैं जिस स्पेस पर जाऊंगा और वो बंदा जिस स्पेस पे जाए, सवाल ही नहीं है कि ये दोनों पेस मैच करेगा। क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी सलाहियत अलग होती है, हर स्टूडेंट की अपनी काबिलियत अलग होती है, हर स्टूडेंट का अपना पेस अलग होता है, समझने का अप्रोच अलग होता है। क्लास के 2-4 बंदे होते हैं जो कि बहुत, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, या फिर उनको मतलब उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो फिर आपके लेवल पर कैच कर जाते हैं, बाकी छूट जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। एक बहुत सिंपल सा मुझे सोल्यूशन समझ में आया कि हर बंदे का अपना पेस है। मैं 5th टॉपिक पे पहुंच जाता था, लेकिन जनता जो है वो 2nd 3rd टॉपिक पे ही स्ट्रगल कर रही है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया, कैपेसिटर पढ़ाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, मैग्नेटिज्म पहुंच गया। स्टूडेंट से पूछता हूँ तो वो कह रहे हैं सर अभी तो हम कैपेसिटर पे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स पे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब इसका क्या करें। तब मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना हम उनके लिए एक ऐसा सोल्यूशन बना दें जो कि जब उनके हिसाब से उनको पढ़ना है तो वो अवेलेबल हो। तो जैसे ऊबर, आप अपने हिसाब से ऊबर बुलाते हैं ना, आपको रात को 12 बजे ऊबर चाहिए, आप मोबाइल पे जाते हैं, ऐप में डालते हैं, आपको टैक्सी आ जाती है। आपको सुबह 5 बजे चाहिए, आपको टैक्सी आ जाती है। तो क्यों ना हम एक टीचर वैसे ही प्रोवाइड कर सकें। तो फिलो का मतलब ये है कि अगर अभी आप, मैं सिंपल है, आप मतलब इसका आप डेमो भी चाहें तो देख सकते हैं कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और ऐप स्टोर दोनों पे ही, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे ही हमारी ऐप है फिलो। बस आप फिलो टाइप करेंगे, FILO, सिंपल। मैं यहाँ पर ऐसे अगर लिंक भी डाल दूँ तो इससे आपको एक डेमो भी हो सकता है अगर आप चाहें जस्ट, या बाद में भी कभी आप देखना चाहें कि हाउ इट फंक्शन, सो दैट आप दूसरों को बता सकें जो हु कैन ना बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो ये बहुत सिंपल सा लिंक है, मैंने डाल दिया, findflow.com/download डालेंगे आप। तो अब इसमें क्या है कि बंदा कभी भी कहीं पर भी कोई भी उसको प्रॉब्लम है, बस डाला कि अच्छा मुझे को बता दे कि कैपेसिटर कैसे होता है, हम 1 मिनट के अंदर उसको एक टीचर से कनेक्ट कर देते हैं। वो टीचर कौन होता है, वो टीचर वो बंदा होता है जो हमारा एल्गोरिथम ढूंढता है कि हाँ ये बेस्ट पॉसिबल बंदा है इस काम के लिए। ऑब्वियसली अभी हमने चूंकि स्टार्ट किया, अर्ली स्टेज पर हैं, तो हमारा एल्गोरिथम एग्जैक्टली वैसा फंक्शन नहीं कर रहा है जैसा मैं सोचना चाहता हूँ और जैसे मैं कराना चाहता हूँ। उसको इंप्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट रात को 12 बजे एक बंदे को अगर प्रॉब्लम है कैपेसिटर में, तो हम रात को 12 बजे उसको एक टीचर प्रोवाइड कर देते हैं जो उसको कैपेसिटर, करंट, मैथ्स के इक्वेशन, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर्स पढ़ा सकता है। प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है। वो डिस्कस करेगा कि देखो भैया मैं ऐसे सोच रहा था, मैं यहाँ पे अटक गया, ये मेरे टीचर का नोट्स था, मैं यहाँ पे अटक गया, और वो बंदा उसको डिस्कस करके बता सकता है। तो बिहार के किसी गांव का बंदा हो, यूपी के किसी शहर का बंदा हो, केरला का बंदा हो, तमिलनाडु का बंदा हो, हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं दुनिया में किसी भी एक्सपर्ट बंदे के साथ जो शायद IIT दिल्ली का हो, IIT बॉम्बे का हो, और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो अब क्या यहाँ से निकला, अब यहाँ से निकला कि ये एक व्हाइट वॉश सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन ऐसा है कि जो बच्चे अपने हिसाब डिसाइड करेंगे, मैं आज ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे आज इसके हिसाब से एक टीचर चाहिए और मुझे वो टीचर मिल सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी, मतलब ये हमारी सोच है इस फेलो को बनाने की, कि कैसे Tier 2 Tier 3 जहां पर कि उतने जबरदस्त टीचर्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पर अक्सर हम कहते हैं कि क्वालिटी ट्यूटरिंग अवेलेबल नहीं है। तो क्वालिटी ट्यूटरिंग अगर अवेलेबल नहीं है तो अब क्या कर सकता है Tier 2 Tier 3 के बंदे, या Tier 1 के भी इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, कि वो कभी भी किसी भी टाइम पर उनको जो चीज सीखनी है, वो चाहे कोई कोचिंग जाते हो, नहीं जाते हो, वो सेल्फ स्टडी करते हो, किसी स्कूल जाते हो, नहीं जाते हो, डजंट मैटर, उनको जब जो सीखना है वो सीख सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये एक सैशेड आप कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली माइक्रो ट्यूटरिंग, क्योंकि हमें पूरा मतलब हजारों टन किताबें नहीं चाहिए होती, ऑलरेडी हमारे पास किताबें हैं, वीडियो मटेरियल से वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। हमें चाहिए बस एक सही बंदा, जिसे कहते हैं ना कि मतलब टीचर के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, तो बस वही एक टीचर किसी भी टाइम पर अवेलेबल जो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाए।
तो ये एक चीज मैंने सोची अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हम कैसे टीयर 2 टीयर 3 में एडुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे एडुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, एडुकेशन को हेल्प कर सकते हैं। अब ये चीज आप मल्टीपल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं या यंगस्टर्स नहीं भी हैं, क्योंकि एज का कोई बैरियर नहीं होता, कि आप जो हमें बहुत जरूरी है आज के डेट में करना, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि अभी के डेट में नई कंपनीज को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके डेट में। मतलब इंडिया में अगर कभी अपॉर्चुनिटी कहा जाए पिछले 100-200 सालों में, तो वो आज के डेट में है। ये पिछले 10-20 साल से जो फेज चल रहा है। तो अगर आप अपने आसपास कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं, वालेकुम सलाम, मुझे मैसेज आएंगे टेक्स्ट पे, तो अपने आसपास आप कोई प्रॉब्लम अगर देखते हैं तो बैठिए मत, इग्नोर मत कीजिए, सोचिए कि क्या ये प्रॉब्लम पूरे देश में, पूरे दुनिया में शायद 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन और लोगों को हो रही होगी। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम का एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जाए जो कि आप अपने घर के एक गराज से बैठ करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डोंट इग्नोर अपॉर्चुनिटीज, इफ यू लुक अराउंड देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। मतलब मैं एक आइडिया पे काम कर रहा हूँ एजुकेशन पे, मेरे खुद के दिमाग में 10 और चीजें चल रही हैं। अब चूंकि एक अकेला बंदा है, वो 10 कंपनी नहीं चला सकता, 10 आइडिया पे काम नहीं कर सकता, अदरवाइज कोई भी सही नहीं परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन आप अपने अपने आसपास देखें, आपको प्रॉब्लम अगर दिखती है, आप जॉब में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब नहीं करते हैं, डजेंट मैटर, ट्राई टू यूज सम टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब भी हम स्केल की बात करते हैं, आप फिजिकल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि डोंट क्रिएट एटम्स, क्रिएट बिट्स। जैसे कंप्यूटर कोडिंग क्या होता है, बिट्स में काम करता है ना, 1001 1001 कॉम्बिनेशन है सारा कुछ। एटम्स हो गया क्या, मटेरियल प्रोवाइड क्रिएट करना। तो मटेरियल क्रिएट करिएगा, वो आपको खर्चा पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहेंगे कि मुझे पूरे इंडिया में 10,000 बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए मैं 10 स्कूल खोलूंगा, तो 10 स्कूल खोलूंगा जिसमें 1,000 बच्चे होंगे। 10 स्कूल खोलने में आपके पता नहीं 100 करोड़ लग जाएंगे, 50 करोड़ लग जाएंगे, 10 करोड़ तो मिनिमम लग जाएंगे। ऑब्वियस बात है, किसी के पास नहीं है इतने पैसे। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली 10,000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि 10,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो आपको है कुछ लाइंस ऑफ कोड्स। तो कुछ लाइंस ऑफ कोड्स क्रिएट करें, आइडिया सोचें कि हाँ ये एक गैप है जो कि मैं फिलफिल कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से वो गैप को आप काम करना शुरू कर दें। अगर आप कहते हैं कि मुझे कोडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, मुझे भी इन पर्सन कोडिंग नहीं आती, मैंने कॉलेज में थोड़ा सीखा था, फिर मैं भूल गया। क्योंकि मैंने फिर जब मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने राइज में क्या किया है, लेकिन मेरा एग्जैक्टली काम नहीं रहा कोडिंग का। तो मेरे दोस्त है माशाल्लाह, मेरे दोस्त हैं शादमान, जो कि रहमानी 30 के प्रोडक्ट हैं। मैं खुद रहमानी 30 से पढ़ा हूँ। वो मेरे स्कूल में भी सीनियर थे, रहमानी 30 में भी सीनियर थे, फिर वो IIT दिल्ली चले गए, और उन्हें कोडिंग आती थी, वो कोडिंग में ही काम करते थे। तो जब मुझे फिलो का आइडिया आया था, तो मैं सबसे पहले, उस टाइम कश्मीर में था, मैं फ्लाइट पकड़ा, गुड़गांव आया, क्योंकि वो गुड़गांव में रहते थे, और हम लोग एक लंबी ड्राइव पर गए, और घंटे 2 घंटे हमारा डिस्कशन होता गया। और मैंने कहा कि यार ये चीज काम करेगी, ये चीज करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेट्स कोड इट। एंड ही एग्रीड, और फिर वो कोड करने लगे। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आसपास देखिए, अपने दोस्तों को देखिए। वैसे भी कोई बड़ी कंपनी अकेले नहीं बनाई जाती है, 2 3 4 5 लोग मिलकर के कोई बड़ा काम करते हैं। तो लुक अराउंड, get the right mindset, get the right people, build a right team। बट हाँ, कॉमन चीज ये है कि everyone should be very professional and very passionate। क्योंकि अगर कोई काम करना है आपको, let's say if you are working on something, और रात के 10 बज गए, तो ये सब मत सोचिएगा कि रात के 10 बज गए, अब तो डिनर का टाइम है, और फिर अब मम्मी डांटेंगी, या फिर गर्लफ्रेंड डांटेगी, वाइफ डांटेगी, व्हाटएवर जो भी है, और अब सोने का टाइम है। ना ना ना, ये सब नहीं होता है। रात 10 बजे, रात 12 बजे, सुबह के 4 बज जाए, या फिर अगली रात का टाइम हो जाए, अगर काम करना है तो वो करना है। क्योंकि आप ऐसे मान के चलें कि दुनिया में जो बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, एक अलग लेवल। इंडिया में अगर मैं बात करूं, पेटीएम, मीशो, उड़ान, बाइजूस, टॉपर वगैरह, ये एक अलग लेवल। इसके नीचे फिर आप 5,000 फीट, क्या 50,000 फीट का गड्ढा खोदें, और उसके नीचे फिर अपने आप को प्लेस करें कि हम उस लेवल पर हैं। फिर ऐप से अभी भी आज के डेट में भी 75,000 के आसपास स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लगभग 6,000 के आसपास, 5 से 6,000 के बीच में टीचर्स जुड़े हुए हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं इन बड़ी कंपनी से 50,000 फीट नीचे हूँ।
तो ये जो दर्द है ना दिल में, ये मेरे को जगाए रखता है। तो कितनी हमारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं कि जो रात के 12 बजे स्टार्ट हुई और सुबह के 5:30, 6, 7 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो नींद, प्यास, भूख, ये सब भूलनी पड़ती है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपको छलांग मारनी है, तो सीधे रास्ते, सीधे चाल पे नहीं चलना है। तो छलांग मारने के लिए जो है वो जुनून चाहिए होता है, वो एक थोड़ा पागलपन चाहिए होता है। एकदम आप एक आइडियल लाइफ टाइप सोचेंगे तो ये सब चीजें आइडियल लाइफ से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप उठा करके देख लें किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर का या किसी ऐसे बंदे का जिसने की एक रेवोल्यूशन लाया हो या सिचुएशन को डिसरप्ट किया हो, मार्केट को डिसरप्ट किया हो, वो लोग कभी भी एकदम लीनियर अप्रोच नहीं चलते हैं। हाँ करते हैं, मतलब आपको एक फेज होगा आपका 2-3 साल का, बहुत डिफिकल्ट फेज गुजरेगा, बट उसके बाद फिर आप, इफ यू सक्सीड ग्रेट, इफ यू फेल यू विल गेट इमेंस अमाउंट ऑफ लर्निंग। मतलब आपको इतनी लर्निंग हो जाएगी ना कि आपको कोई दूसरी कंपनी एक बहुत हाई पोस्ट पर हायर भी कर लेगी, क्योंकि उसको पता होगा कि यार इस बंदे ने 2 साल बहुत हसल किया है, बहुत दिमाग लगाया है, ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आपकी अपनी कंपनी नहीं चली, कोई बात नहीं, मतलब बिकॉज कंपनी के चलने के पीछे हजारों फैक्टर्स ठीक होने चाहिए। अगर एक भी पंगा हो गया आपकी नहीं चल सकती है, बट इट डजंट मेक यू वीक, इट डजंट मेक यू लुक लाइक अ फूल, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इट गिव्स यू एक्सपीरियंस। तो आप मतलब ये फेलियर का टेंशन नहीं लें। फेलियर का टेंशन लेंगे तो फिर आप कुछ बड़ा काम करने का हिम्मत नहीं रखेंगे। आपको करना है ये सोचकर कि यार ये मेरा शौक है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए चाहे जो हो जाए मैं लगा दूंगा अपनी जी जान, पैसे, इन्वेस्टमेंट, वॉट। फिर धीरे धीरे टाइम बाय टाइम आपको सपोर्ट मिलता रहता है। व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड समथिंग बिग, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। If you are building a rocket, everyone wants to get a seat in that rocket and nobody will ask that which particular seat I'm getting. ये गूगल के फाउंडर का स्टेटमेंट था, जब उसने अपने कुछ खास लोगों को कहा था कि आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट, जस्ट गेट इनटू दैट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आपके पास आएंगे। अगर आपको मुझसे थोड़ा जानना है कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे होता है, कहाँ से फंडिंग आती है, आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक या मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल करें। आई विल ड्रॉप यू सम नेम्स, आई विल गिव यू सम गाइडेंस। Inshallah, there is no problem in that. If you ever feel like building a new company or getting into education, चूंकि टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पर मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, तो पॉइंट ये है कि आप समझें कि टेक्नोलॉजी अभी पहुंची नहीं है टीयर 2 टीयर 3 तक, लेकिन हाँ थैंक्स टू इंटरनेट कंपनीज इंटरनेट पहुंच गया है, जियो पहुंचा हुआ है हर जगह, वीडियो कॉल बहुत जगह, मतलब गांव से भी लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि आज से 3 साल पहले गांव से वीडियो कॉल करना मुश्किल था, लेकिन अब 4G, अब तो 5G भी आ रहा है, के बाद आसान हो गया है। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके क्यों ना ऐसा कुछ हम नया बिल्ड करें जिससे कि शायद हजारों लोगों का फायदा हो, और लोगों का अगर फायदा होगा तो लोग आपको पे करेंगे, आपकी कंपनी बड़ी होगी, आपको रिटर्न मिलेगा, आप अपने इन्वेस्टर्स को भी पैसे रिटर्न कर पाएंगे, आप खुद को भी पैसे दे पाएंगे, अपने एम्प्लॉयज को भी पैसे दे पाएंगे। तो यू हैव टू जस्ट लुक अराउंड द प्रॉब्लम्स पीपल फेस एंड ट्रस्ट मी, अभी अगर मैं लिखने बैठूं कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे मतलब दिन कम पड़ जाएगा, इतनी लंबी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की जिसको लोग सॉल्व जो है नहीं करते हैं। हाँ वो टॉप लेवल पे दिखता नहीं है। अब आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। मान लीजिए आप किसी रिटेल सेक्टर में काम करते हैं, तो वहां पर देखिए क्या प्रॉब्लम है। आप एजुकेशन में काम करते हैं, वहां पर देखिए क्या प्रॉब्लम है। आप लेट से आप हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, आप लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं, आप किसी भी आप फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप टूरिज्म में काम करते हैं, तो देखिए कि यहाँ पर कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है जिसको टेक्नोलॉजी से रिजॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ अगर एजुकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन में कैटेगरी क्या है कि प्री स्कूल मतलब किंडरगार्टन लेवल पर चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि किंडरगार्टन में क्या क्या लोगों को तकलीफ होती थी। मतलब जैसे मेरी मॉम को बहुत प्रॉब्लम होती थी सही स्कूल ढूंढने के लिए, हम लोगों का, मैं और मेरी सिस्टर के लिए, वो एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग उस पर काम करते हैं। सही स्कूल मिल गया, फिर मेरा बच्चा सही से सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। स्कूल का मार्क्स कार्ड तो आ जाता है, लेकिन मार्क्स कार्ड नहीं शो करता है कि आपके दिमाग में क्या है बच्चे के। वो सबसे बकवास चीज़ है, मार्कशीट जो होती है उससे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा बच्चा सीख रहा है कि नहीं, उसका मेंटल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, एक प्रॉब्लम है। इस पर लोग सोल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन आ चुका है दुनिया में। लोग ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका अप्रोच बेटर हुआ तो यू विल बीट योर कॉम्पिटिटर्स। बंदा क्लास 1 में घुसता है, क्लास 2 में घुसता है, क्या उसको उस टाइम पर स्कूल के बाहर कुछ और सप्लीमेंट सपोर्ट की जरूरत है? सोचिए इस पर कि अगर आपका कोई बच्चा है, आपका कोई सिबलिंग है, कोई कजन है, वट
और वो क्लास 2-3 में है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कि हाँ यार मतलब स्कूल तो जाता है लेकिन शायद क्या पता ये और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है या इसका ग्रोथ और अच्छा हो सकता है अगर मैं इसको कुछ और प्रोवाइड करूँ। वो बंदा बॉम्बे में भी रह सकता है, हैदराबाद में भी हो सकता है, वो लखनऊ भोपाल जैसे शहरों में हो सकता है, वो पटना बनारस जैसे शहरों में भी हो सकता है, या फिर वो किसी एकदम गाँव में भी हो सकता है। पैन पैन स्पेक्ट्रम सोचिए, हर सोल्यूशन का तरीका अलग अलग हो जाता है। फिर जब बंदे क्लास सीनियर क्लास में पहुंचते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, चीज़ें यहाँ से जो और टफ होने लगती हैं, थोड़ी सीरियस होने लगती हैं, तब सोचिए कि इसको हम और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं इन एनी सेक्टर तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो थिंक इन दोज लाइन्स कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं और उसके हिसाब से यू कैन बिल्ड समथिंग टोटली न्यू एंड यू कैन गेट इट्स रिटर्न। तो मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था वो प्राइमरीली टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा कश्मीर से रहा। कश्मीर के बारे में मुझे रज़ाक भाई ने साफ कहा था कि आप मैं एक्सपीरियंस शेयर करें। तो कश्मीर का मैं ऐसा आपको कह सकता हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा गया था कश्मीर, तो एक हफ्ते तक ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ सोऊंगा और कहाँ पर रहूँगा। जुगाड़ किया था मैंने एक दोस्त से, उसके दोस्त के घर पे 2 दिन वहाँ रहा, फिर वहाँ से कहा गया कि नहीं यार अब ज़्यादा हो गया, यहाँ से निकलो, फिर कहीं और रहा, फिर कहीं और रहा। तो एक हफ्ता तक तो सिर्फ मैनेज किया मैंने कि रहने की जगह कहाँ होगी, ठीक है। फिर मुझे समझ में आया कि लोगों को यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन फिर ये लोग क्यों नहीं इनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं पहुँच पा रहा है प्रीमियम कॉलेजेस में कंट्री के। तो समझ में आया कि उसकी सिंपल वजह है कि लोगों को नहीं पता है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन क्या लेना है। उनको सिंपल गाइडेंस नहीं, सिंपल एक्सपोजर नहीं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो मैं सोचा कि यार ये तो बहुत आसान काम है मेरे लिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह छोटी उम्र है लेकिन काफ़ी अच्छे कॉलेज में पढ़ता हूँ, काफ़ी दुनिया देखी है, काफ़ी पढ़े के काबिल लोगों के बीच में उठना बैठना रहा है, और उस वजह से अच्छा एक्सपोजर है, मेरे दोस्त काफ़ी काबिल हैं। तो मतलब मेरे पास रिसोर्स हैं कि मैं 10 अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ और यहाँ पर उन इन्फॉर्मेशन को मैं सीधा ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ। तो बस यही करना था मुझे, तो उसी को हमने स्टार्ट किया था। तो पहले हम लोगों ने वर्कशॉप से स्टार्ट किया, 2-3 दिन की वर्कशॉप, उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 महीने का वोकेशनल कोर्स किया। फिर फॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात हो गई, मेरे एक मतलब ज़िंदगी के बहुत ख़ास दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जैसे हैं बिल्कुल, मुबीन, वो कश्मीर के हैं। तो चूंकि वो कश्मीर के थे तो इस वजह से चीज़ें और आसान हो गई मेरे लिए। हम लोगों ने टीम अप कर लिया, राइज इंस्टीट्यूट तैयार हो गया। फिर मेरे एक दोस्त हैं आईटी खड़गपुर के ही, सलमान, उन्होंने टीम अप कर लिया। उन्होंने कहा कि आई विल लाइक टू जॉइन दिस जर्नी। तो हम तीनों ने हो गए। फिर मेरे एक दोस्त हैं सैफी, वो डीटीयू के हैं, वो आ गए हमारे साथ। तो फिर हमने सोचा कि यार अब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं कश्मीर में, ऐसा कुछ कर सकते हैं जो पिछले अगले 50 साल तक जाएगा। चैलेंजेस तो बहुत आए कश्मीर में पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में जो हालात रहे उस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट हम लोग हिले नहीं। मतलब हमारा था कि नहीं, अब उखली में सर डाल दिया है तो इससे कुछ बड़ा बना करके ही निकालना है। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोगों को सुबह 5 बजे क्लास नहीं होती थी और 8 बजे तक रैप अप कर देना होता था, जब हालात सही नहीं थे कश्मीर में। बट कोई नहीं, हमने वो भी किया। अक्सर वहाँ पर जब चीज़ें हड़ताल हो जाती हैं, अक्सर वहाँ पर चीज़ें जब थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उस टाइम पर बहुत ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती हैं, ताकि स्टूडेंट को परेशानी ना हो, पेरेंट्स को परेशानी ना हो। उम, और सबसे ज़रूरी ये चीज़ थी कि लोगों में होप क्रिएट हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था अपॉर्चुनिटी के बारे में। लोगों को पता ही नहीं था कि अगर हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो उससे क्या फ़ायदा है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि हम वहाँ पर रोल मॉडल्स क्रिएट करें। तो वो चीज़ हमने फाइट मारी कि अब आज के डेट में जो हमने पिछले 4-5 साल वहाँ पे एफर्ट मारा, बातचीत में क्या है कि आप किसी स्कूल गोइंग स्टूडेंट से अगर पूछेंगे कश्मीर के कि हाँ भाई क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, तो हो सकता है मतलब यू शुड नॉट बी सरप्राइज अगर वो कहेगा कि मैं हार्वर्ड से अंडर ग्रेजुएट करना चाहता हूँ। तो हार्वर्ड से अंडर ग्रेजुएट करने की ललक जो है वो कैसे आई? वो इसलिए आई क्योंकि उसके ही कॉलोनी के दूसरे एंड पर एक बंदा है जो कि यूएस में एक टॉप कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, प्रिंसटन से पढ़ाई कर रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई कर रहा है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, पर्ड्यू से पढ़ाई कर रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से पढ़ाई कर रहा है। तो रिलेटेबल रोल मॉडल्स जगह। तो मतलब मेरे दिमाग में जुनून था और मैंने अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में जुनून डाला। उन्होंने कहा कि यार देखो, एवरेज लाइफ एक बार मिली है ना, तो मतलब इसमें मैं बाबर का एक खुतबा है जो मुझे अक्सर ध्यान होता है कि
जिंदगी जो है वो मौत की अमानत है, और कामयाबी और बुलंदी जो है वो जिंदगी की अमानत है। तो इससे पहले कि मौत अपनी अमानत छीन ले, हमें छीन लेना चाहिए जो जिंदगी की अमानत है, हमारी अमानत है। तो इसलिए एवरेज होकर रहने में कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई मजा ही नहीं है। अगर लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किए अपने यंग एज में कि अपने होने वाले पोते नाती को कुछ कहानी सुना पाए इंटरेस्टिंग, तो मतलब मजा नहीं आएगा फिर। तो मैं कहता कि अभी घिसाओ, अपनी हालत खराब करो, अपने सर के बाल सफेद करो, क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ पहुंचना है वो बहुत डिफिकल्ट है, बट कर सकते हैं। तो वो अपने लड़कों ने किया, वहां पर स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की, बहुत जगह पहुंचे। आज के डेट में इंडिया के लगभग सभी आईआईटीज में कश्मीर के बंदे हैं, और अच्छा रिप्रेजेंटेशन है माशाल्लाह से। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाकी 1000 लोग हैं, जो अपब्रिंगिंग यूथ है, उनका एस्पिरेशन बहुत बढ़ गया है। वो अब मेडियोक्रिटी को पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, और नॉट जस्ट एकेडमिक्स बल्कि किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे आर्ट्स की फील्ड में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, वो चाहे म्यूजिक में हो, वो चाहे फोटोग्राफी में हो, वो चाहे ड्रामेटिक्स में हो, वो चाहे आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में हो, किसी भी फील्ड में हो। काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने अपने आसपास हर लेवल पे, चाहे स्कूल लेवल पे हम हैं, कॉलेज लेवल पर हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हमको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, इवन की ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी। जैसे बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं एजुकेशन में, बट उनमें मुझे थोड़ा कंपटीशन की कमी लगती है। लेकिन जैसे अगर आप रहमानी 30 को देखेंगे, तो रहमानी 30 का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फिलहाल तो फहद रहमानी है, हजरत मौलाना वली रहमानी साहब के छोटे साहबजादे, वो चला रहे हैं। फहद भाई कहता हूँ मैं उनको, मतलब काफ़ी बड़े हैं लेकिन हम लोग दोस्त जैसे हैं बिल्कुल। वो बंदा भी वही, उस बंदे में मुझे क्या चीज़ दिखाई देती है, जुनून। 30 का बैच हुआ करता था रहमानी 30 का, जब हम लोग थे वहाँ पर। आज के डेट में रहमानी 30 के 800 स्टूडेंट है। वो बंदा देखता नहीं है कि ये मिट्टी की दीवार है कि स्टील की दीवार है, वो जाके सर मार देता है अपना कि ये टफ है, कोई बात नहीं, देखते तो हैं क्या होगा, थोड़ा खून निकलेगा एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, देखेंगे। वो वैसा जज्बा चाहिए हर लेवल पर। डिफिकल्ट है कुछ नहीं, ट्राई करेंगे। हमने आईआईटी से ट्राई किया, हम ओलंपियाड्स में जाएंगे, हम एनडीए में जाएंगे, हम सीए में जाएंगे, हम चाहे यूपीएससी हो वहाँ पर जाएंगे, हर जगह अपना सर सर को मार के देखना है कि हम कितने पानी में हैं और कितनी हमारे अंदर सलाहियत है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना एस्पिरेशन जो है वो बहुत हाई करें, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम ख्वाब बड़े नहीं दिखेंगे ना, ख्वाब अगर हमारा है कि ठीक है हाँ 30,000 की जॉब मिल जाए, 40,000 की जॉब मिल जाए, तो उससे फिर क्या होता है कि फिर आप खींच नहीं पाते हैं। आप खुद तो सेटल हो जाते हैं कहीं पर, लेकिन आप अपने साथ 20 लोगों को, 50 लोगों को खींच नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए ये पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। अब मैं अपने मोहल्ले का बंदा था कि मेरे मोहल्ले में मेरे आसपास, घर के आसपास तो कोई अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं जाता था। मेरे मॉम डैड ने बड़ी मशक्कत की, तो शहर के एकदम दूसरे कोने पर 20-25 किलोमीटर दूर, और 20-25 किलोमीटर आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ मैं 99 की, तो वहाँ पर 20-25 किलोमीटर का ट्रैवल एक बड़ा मसला होता था। मतलब हमारे माँ बाप के ना, मतलब हालत ख़राब हो जाती थी उस दिन हमें लेके जाने में। ऑटो का किराया भी इतना अच्छा खासा लगता था, बट हमने फाइट मारा क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है ताकि थोड़ा एक्सपोजर मिले। तो मैं सोचा था कि अगर मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मेरे आसपास मोहल्ले के बंदे पढ़े हैं नॉर्मल स्कूल में, अगर मैंने फिर नॉर्मल काम करने का प्लान किया, तो फिर ये दोस्त मेरे क्या प्लान करेंगे? और अगर ये दोस्त फिर और उसके नीचे का प्लान करेंगे, तो फिर जो उनके नीचे हैं, जो शायद कहीं स्कूल ही नहीं जा पाए, वो फिर क्या प्लान करेंगे? तो इसलिए जिसको स्कूल लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस पर समझिए कि एक तरह से लाजमी है कि वो फिर अपने आप को खींचे। पिरामिड को आप जितना, पीक पॉइंट जितना ऊपर आप खींच पाएंगे आप खींचें, उससे फायदा ये होगा कि नीचे वाले को थोड़ा सा ब्रीदिंग कैपेसिटी मिलेगा। अब मैं ही जाकर के मान लीजिए एक गवर्नमेंट पोस्ट लेकर के बैठ गया, लेकिन मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं शायद 5,000 लोगों की कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ। 5,000 की नहीं तो 50 की कंपनी तो जरूर शायद क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मैं गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठ जाता, तो वो 50 की अपॉर्चुनिटी भी मैंने मारी, और एक और गवर्नमेंट पोस्ट ही मैंने मान लिया। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं 50 की कंपनी क्रिएट करता हूँ, मेरा कोई दूसरा भाई आएगा, वो गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठेगा, ताकि वो फिर किसी और के लिए प्लेस क्रिएट करेगा। आई थिंक मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट क्लास में फोकस ही नहीं करेंगे क्योंकि उनकी माइंडसेट ये हो जाएगी कि बाद में पढ़ लूंगा। ओके, आंसर ठीक है, ये क्वेश्चन है। सी, आप इसको ऐसे देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप
बाहर कभी घूमने जाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि हाँ आप शायद बीमार पड़ जाएंगे, या आप शायद आपको हवा लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, खांसी आ सकती है, सर्दी हो सकती है। तो इसका क्या तरीका होता है? एक तरीका है कि हाँ रूम के अंदर बंद रहो, आइसोलेटेड एकदम, सारा पॉल्यूशन सब चीज़ से बंद रहो। दूसरा तरीका है कि बाहर जाओ, जब पंगा होगा तो ट्रीटमेंट करा लेंगे। यहाँ पर वही सिचुएशन है। बंदा को अगर लगता है कि वो क्लास में अटेंशन नहीं देगा अगर, तो बाद में वो पढ़ सकता है। सवाल उठता है कि वो अटेंशन क्यों नहीं देना चाहता है। अगर उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फिर उसको अटेंशन की जरूरत नहीं है। जो लोग सीरियस होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि अपने दिमाग को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उनको चीज़ समझ में आ रही होती है, ऑटोमेटिक अटेंशन आ जाता है। बंदे जब घर बैठ के पढ़ाई करने बैठते हैं, ट्राई कुछ करने बैठते हैं, तो उनको डर लगता है। सेल्फ स्टडी क्यों नहीं करना चाहते लोग? सेल्फ स्टडी इसलिए नहीं करना चाहते हैं, उनको पता होता है कि 15 मिनट के बाद हम फंसेंगे कहीं ना कहीं पर, और डिफिकल्ट काम करना किसी को पसंद नहीं आता। तो वहां पर मैं चाहता हूं कि हाँ ठीक है, तुम ट्राई करो, तुम फंसो, लेकिन जब तब की तब देखी जाएगी। अगर फंसोगे तब कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। सो ऑलवेज यू नीड टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल अराउंड यू। आप एक पैरेलल, आप मान के यही चलते हैं हम लोग कि क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 60 में 60 का अटेंशन लेवल सेम कैसे रहेगा। हम ऐसे सोचते हैं कि अच्छा क्लास में मैंने पढ़ा दिया, 60 का अटेंशन लेवल सेम चाहिए। अरे अटेंशन लेवल सेम रखना सबके सलाहियत की बात नहीं है। आप फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको अगर रिलेट कर दूं, वो शायद एग्जांपल सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि अक्सर लोग जब नमाज में होते हैं और पीछे सुन रहे होते हैं, अक्सर तरावी के वक्त में कितने लोगों का पूरा पूरा टेंशन बना रहता है? 2 मिनट में टेंशन खत्म हो जाता है, 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि जो हम सुन रहे होते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि हमें अरबी नहीं आती है इंडिया में मुसलमानों। एग्जैक्टली सेम इज द कंडीशन विद स्टूडेंट्स इन क्लास। यू कैन नॉट कंप्लेन कि तुम्हारा अटेंशन जो है वो बर्बाद हो रहा है। व्हाट आई एम टेलिंग देम कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको अगर आप अटेंशन मेंटेन रख पाते हो तो अटेंशन मत रखो, क्योंकि बाद में हेल्प मिल जाएगी। ऑल आई एम टेलिंग इज कि अगर आप नहीं रख पाते हो तो आपको सरदर्द लेने की, आप घर जाकर के फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगे क्लास समझ में तो आया नहीं कुछ मेरे को। मैं कह रहा हूँ कि भाई फिर भी आप ट्राई करो, शायद कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। ओके, हाउ टू मेंटेन माई मोटिवेशन ड्यूरिंग माई होल कोर्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सी, कभी नहीं होने वाला है कि आपका पूरा मोटिवेशन एकदम स्टार्ट टू एंड नहीं रहे। लाइफ आइडल नहीं चलती है, कभी नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती है। मुझे कितने बार मोटिवेशन ये आता है कि यार मैं सब कुछ बंद कर दूं आज के, जबकि तो मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ। आपको ये मान के चलना है कि आपका ड्रीम क्या है। वो ड्रीम आपको एक बार लिख लेना है दिमाग में, कागज पे, कॉपी में, कहीं पर भी, कमरे में, या अपना ड्रीम अपने 10 दोस्तों को बोल दो। मोटिवेशन डाउन जाना ही जाना है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आप कोई डिफिकल्ट काम करोगे, और जब आप डिफिकल्ट काम करोगे तो उसमें अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। ये कभी भी लीनियर ऐसा लाइन ग्राफ कभी नहीं होता है। लेकिन जब आपका मोटिवेशन डाउन जाएगा तब आपको याद आएगा कि यार मैंने अपना ड्रीम अपने उन 10 लफंगे दोस्तों को बोल रखा है जो कि मेरे नाक में दम कर देंगे अगर मैंने उस ड्रीम को फॉलो नहीं किया कम से कम, या बीच में छोड़ दिया तो। अपने माँ बाप को बोल के रखा हुआ है, अपने भाई बहन को बोल के रखा हुआ है, और अपने चारों तरफ, अपने दिमाग से लेकर के अपने चारों तरफ कमरे में लिख के रखा है। तो वो ड्रीम आपको नहीं सोने देगा, वो ड्रीम आपको जगाएगा। उस रात को नहीं तो अगले दिन सुबह, नहीं तो अगले वीक, नहीं तो अगले महीने, मगर जगाएगा जरूर। तो इसलिए when you are going for a big difficult task, please pick up a dream. Okay. अगला क्वेश्चन है कि आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंस्टीट्यूट टीचर, आई रियलाइज दैट इंडियन स्टूडेंट्स रूरल particularly doesn't consider online study is a mode of study. सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये चीज नहीं आई है, ऑनलाइन स्टडी ये नहीं आई है। अब इसमें मेरा भी यही मानना है कि जब बहुत लंबी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन तो वो काफी बोरिंग हो जाती हैं, क्योंकि उसमें इतना इंटरेक्शन नहीं होता। मैं ये अगर यहाँ पर अगले 2 घंटे तक बोलता रहूँ तो आधे घंटे में लोग क्या कहते हैं, शटर बंद कर देंगे, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे। इट्स वेरी ट्रू। बट पॉइंट ये है कि अब जो रूरल्स में हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो ऑब्वियस बात है कि कोई बंदा बॉम्बे से फ्लाई करके तो नहीं जाएगा उनके लिए, दैट इज नॉट कमर्शियली वायबल। तो ऑनलाइन ही कनेक्ट हो सकता है ना, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। तो ये सब चीजें अडेप्टेबिलिटी की आती हैं। जब मेडिसिन भी आई थी दुनिया में तो लोगों ने उस पर फतवे दे दिए थे, या कहा था कि यार ये शायद सही नहीं है, ये हराम है, या पता नहीं सिखा के कुछ हो जाएगा। तो नई चीज है,
अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, बट धीरे धीरे जब लोगों को इसका फायदा समझ में आता है तो अडॉप्ट हो जाता है। अब ऑनलाइन की बहुत सारे कॉन्स भी हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। तो इसीलिए हमें बेसिकली उसका बस देखना चाहिए कि हमारा जहाँ तक फायदा हो रहा है जिस चीज़ को यूज़ करने में हम उसको यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमको लग रहा है नुकसान हो रहा है हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जो फिलो के पीछे कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फिलो इज नॉट योर स्कूल और फिलो इज नॉट योर परमानेंट टीचर। फिलो इज जस्ट अ कंपेनियन, फ्रेंड। अब वो फ्रेंड आपसे ट्रैवल, आप पंगे में होते हो, आप क्या करते हो, आप अपने दोस्त के पास जाते हो, परेशान होते हो, आप क्या करते हो, अपने दोस्त के पास जाते हो। अब वो दोस्त अगर आपके घर के बगल में है और अगर आप वो दोस्त आपकी हेल्प कर सकता है तो कर देगा, लेकिन 10 में से 2 बार वो कर पाएगा, 8 बार नहीं कर पाएगा। तो फिलो को मैंने एक एज ए फ्रेंड बनाया है कि वो फ्रेंड की तरह है कि जब आपको प्रॉब्लम है आप उस पर अपनी प्रॉब्लम डालेंगे और एज अ फ्रेंड वो आपको हेल्प कर देगा। वहां पर एक रिलायबल फ्रेंड होगा जो कि आपको किसी भी टाइम पर कभी भी हेल्प कर सकता है। Mr. Imbasat, can I take over the question and answers from here? परफेक्ट, श्योर। Yeah. So the other question is, how can the teachers participate in Philo? What do you या have? एग्जैक्टली। तो फिलो की एक दूसरी ऐप है फिलो ट्यूटर। आप बस ऑनलाइन सर्च करेंगे फिलो ट्यूटर, Okay. ठीक है। तो फिलो ट्यूटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सर्च करेंगे फिलो ट्यूटर, तो आप उसमें रजिस्टर कर देंगे। फिर आपसे वेरीफाई कर किया जाएगा कि आप अपना कोई भी कॉलेज आईडी, स्कूल आईडी, को एक आईडी अपना पेश करें जिससे कि हम वेरीफाई कर पाएं कि हाँ आप एज अ टीचर या फिर आपको सलाहियत है, आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, आप चाहे टीचर हो, या आपके पास जस्ट एक डिग्री हो, आप किसी भी प्रोफेशन में। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा लेट से दिन में 9 to 6 को जॉब करता है, बट उसको मैथ्स आती है, उसको फिजिक्स आती है, उसको केमिस्ट्री आती है, उसको इंग्लिश आती है, उसको लेट से मेंटल एबिलिटी, उसको रीजनिंग आती है, उसको कंप्यूटर्स आता है, कोई भी सब्जेक्ट आता है जो, और उस सब्जेक्ट का शायद कोई एक टॉपिक भी आता हो, मान लीजिए मैथ्स का कोई छोटा सा टॉपिक भी उसको आता है जिसमें वो किसी की हेल्प कर सकता है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ट्यूटर। हमारा एक बेसिक वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटी है जो कि हम करते हैं, और फिर वहां पर से वो एक अच्छी उनकी पार्ट टाइम इनकम क्रिएट हो सकती है। Apart from the verification, do you have some sort of assessment for the teachers as well? अभी करंटली नहीं है, लेकिन हाँ वो इन प्लेस आने वाला है। अभी करंटली नहीं, करंटली हम उनके बैकग्राउंड पर उनको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, तो और मैं इसमें ऐसा है कि 3 से 4 घंटा अगर लोग लगाएंगे तो एडिशनल इनकम ऑफ 10 to 15,000 आराम से उनकी बन जाएगी। अच्छा, मतलब ज्वाइन करने के एम्पल चांसेस हैं। तो Yep. क्या सब्जेक्ट्स हैं जो फिलो कवर करता है? देखिए कुछ करंटली हम ब्रीफ लोग आइडिया जी। करंटली हम लोग क्लास 8 to 12 में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर्स हम लोग ऐड करने वाले हैं। वो इस वीक आ जाएगा, लेकिन अभी वो होली की लॉन्ग वीकेंड हो गई इसलिए हम ऐड नहीं कर रहे, वो अगले वीक तक आ जाएगा। और इसके अलावा फिर जैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, जिसमें मोस्टली रीजनिंग, क्वांट, बेसिक, मतलब समझिए क्लास 9-10 के मैथ्स के अराउंड ही, तो उन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर इसमें हम लोग धीरे धीरे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स लाएंगे, बट फिलहाल अभी इतने सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो व्हाट इज द फ्लो ऑफ दीज सब्जेक्ट्स? जैसे आपने बताया कि द कॉन्सेप्ट इसके जब बच्चा पढ़ना चाहे, तो क्या कुछ एक पर्टिकुलर लिंक रहती है इस सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी में, या हाउ डू यू डू इट? तो बेसिकली जब आप ऑनबोर्ड करते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि टॉपिक्स जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, आप वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं, आपने 9th-10th की मैथ्स उठा ली, आपने 11th-12th में मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री अच्छी थी, आपने केमिस्ट्री उठा ली। अगर आपको लगता है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी थी तो उसमें वो भी ऑप्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री आपने पिक नहीं, कर। I'm talking from the perspective of the student. हाँ ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट, ठीक है मैं जस्ट इसको कंप्लीट कर लूँ, मैं स्टूडेंट पे आता हूँ। तो फिर क्या होगा कि एज ए ट्यूटर आप ऑनलाइन जा सकते हैं उसमें जब भी आपको फ्री है, टाइम है, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। अगर आपको लगता है आज आप रात में 9 बजे फ्री हैं, 9 बजे आप ऑनलाइन चले गए। फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई बंदा क्वेश्चन प्लेस करता है और हमें लगता है कि हाँ आपकी सलाहियत है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम आपको वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भेज देंगे। आप जैसे ही वो क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो डिक्लाइन कर सकते हैं, चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे यू विल बी कनेक्टेड ओवर अ वीडियो कॉल 1-to-1 विद दैट किड, और फिर उसके साथ बात करके आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नाउ फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट के लिए क्या है कि स्टूडेंट कभी भी अगर कोई पढ़ाई कर रहा है और स्टूडेंट को लगा कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, या इसमें मेरे को शायद मैं तो ऐसे सोच रहा था मुझे आंसर नहीं आ रहा है, या मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर तरीका सही है कि नहीं सही है, या उसे सिंपली कल को अपना होमवर्क करके रखना है और उसको एक दूसरा पर्सपेक्टिव चाहिए, या उसको कोई असाइनमेंट करनी है, या उसको जस्ट फास्ट एंड फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो अपना क्वेश्चन डालेगा और जस्ट शूट करेगा ऐप में, और हमारा एल्गोरिथम उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल टीचर है वो कनेक्ट करके उसको 1-to-1 वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर देगा। फिर उसके साथ वो बातचीत करके आराम से 10-15 मिनट जितना भी उसको लगता है अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ले।
ठीक है, तो आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं फिर को, तो एब्सोल्युटली, यू बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो are you providing as per the names of the competitive exam or the way you said data interpretation या analytical thinking तो या इस बेसिकली तरह के हाँ, तो टॉपिक्स इसमें वाइज है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम भी हैं। जब इसमें स्टूडेंट ऑनबोर्ड होते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि आपका एस्पिरेशन क्या है, आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं या आपका 12th में पास करना या स्कोर 12th में अच्छा करना या 10th में अच्छा स्कोर करना, स्कूल एग्जाम को पास करना, क्या आपका एस्पिरेशन क्या है, वो हम पूछते हैं उनसे, ताकि उनके लिए हम बेहतर टीचर कनेक्ट कर पाएं। और उसके बाद फिर जब जो इसमें 11 12 के टॉपिक्स हैं, लेट्स से, तो जैसे 11 12 का जो फिजिक्स का अगर आप सवाल पूछते हैं आप, तो वो फिजिक्स का सवाल हम मान के चलते हैं कि ये सवाल 12th के हिसाब से भी हो सकता है, जेई के हिसाब से हो सकता है, नीट के हिसाब से भी हो सकता है। तो जो आपका एस्पिरेशन लेवल आपने डाला हुआ है ना पहले से, उसके हिसाब से फिर मैच करके हम आपको टीचर से कनेक्ट कर देते हैं। और जो बाकी एस्पिरेट जैसे जैसे रेलवे के एग्जाम होते हैं या जैसे बैंक पीओ के एग्जाम होते हैं, ये जो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम की कैटेगरी के हिसाब से नीचे डाले हुए हैं। ओके ओके, तो दो यू हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि आप किस तरह से आप किसी एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ेंगे तो यू क्रिएट अ स्पेस फॉर अनदर, बट स्टिल एक क्वेश्चन है जो आया है हमारे पास कि क्या IITian आपकी नज़र में, लाइक व्हाट शुड द IITians डू, should they plan job or further education after their bachelor's? See, you should do anything where you feel you can excel. आप जॉब में भी जा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये जॉब जो है वो आपकी काबिलियत और सलाहियत के हिसाब से इट परफेक्टली सेट्स यू फिट इन यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट से थोड़ा 1-2 साल जॉब कर लें और थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद आप यूएस यूके या सिंगापुर या किसी और टॉप लेवल जगहों से अगर आप मास्टर्स करते हैं तो उसका एक आपको थोड़ा एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि यूएस वगैरह में क्या है कि अल्टीमेटली जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो एक तो वहाँ पर पढ़ाई थोड़ी महंगी है, स्कॉलरशिप सब कोर्स में मिलती नहीं है, स्पेशली जैसे बिजनेस रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं या फाइनेंस रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं या फिर आप कह सकते हैं वैसे कोर्सेज जिसमें कि जॉब थोड़ी हाई पेइंग होती है, उनमें तो बिल्कुल भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप मिलेगी सिर्फ आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सब फील्ड में अगर आप कुछ करें तो स्कॉलरशिप मिलती है। तो वहां पर फिर क्या है कि वहां पर भी कंपटीशन है, तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप 1-2 साल का वर्क एक्स ले लें तो उसका पॉइंट काफी ज्यादा ऐड हो जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने यूएस में डिग्री की और फिर आपको इंडिया आना पड़ जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा आपको अक्सर। तो एक आइडियल ट्रैक यही होता है जो मैंने देखा है दोस्तों वगैरह में, कि जिनको एमएस वगैरह करना था उन्होंने क्या किया कि 1-2 साल जॉब की कहीं पर अच्छी जगहों पर, क्योंकि आईआईटी से अगर आप हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाने के अच्छे चांसेस हैं, अनलेस कि आपने आईआईटी में अपना पूरा 4 साल वेस्ट नहीं किया हो। क्योंकि आईआईटी एक प्लेटफॉर्म है, एक रॉकेट है, जो कि आप एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लॉन्च करने का पैड देता है, लेकिन लॉन्च तो आपको खुद ही होना है ना, मतलब वो तेल भर देगा आपको लेकिन लॉन्च खुद होना है। तो 4 साल अगर जाकर के आप सिर्फ वहां बैठ करके नेटफ्लिक्स मूवी देखेंगे तो फिर आपका 4 साल आईआईटी में रहना वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आपने अच्छे से अपना 4 साल यूटिलाइज किया है, आपने 10 तरह की एक्टिविटीज की हैं, बहुत सारे आपने आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स लिए हैं, प्रोफेसर्स के साथ काम किया, कॉम्पिटिशन्स किए, आपने अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाई, आपने कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, इंटर्नशिप्स की, तो सामने वाला कहेगा कि हाँ ये बंदा एक्टिव है, ये हमारी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। 1-2 साल आप जॉब करें और फिर आप मास्टर्स के लिए बाहर जाएं। Okay. Another question is Mr. Nazir Ahmad is asking कि financial costing क्या है स्टूडेंट्स के लिए फेलो की, अगर फेलो की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। फेलो की फाइनेंशियल कॉस्टिंग बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। मतलब अभी तो फिलहाल ऐसा है कि फर्स्ट डे जब फेलो ज्वाइन करेंगे तो आपको 60 मिनट्स फ्री मिल जाता है सब कुछ। उसके बाद फिर डेली का जैसे टॉपअप भराते हैं ना हम लोग, तो डेली का आपको 15 मिनट हम ऐसे भी फ्री दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपको 15 मिनट के बियॉन्ड चाहिए तो आपको सिर्फ 20 रुपए का एक टॉपअप भराना है, मतलब विच इज इवन चीपर देन योर एयरटेल और जियो। और अगर आपको लगता है कि आपको सीधा एक बार में महीने का ही, क्योंकि डेली भराना थोड़ा मुश्किल है, तो महीने का हम 300 रुपीज चार्ज करते हैं। तो 300 रुपीज महीने का आपने टॉपअप भरा दिया, विच इज एक्जैक्टली जस्ट लाइक कि आप जितना एयरटेल वाले को पे करते हैं। और फिर आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉल्स प्लेस कर सकते हैं टीचर्स के साथ, जब भी आपको कोई पंगा है आप पूछ सकते हैं सवाल और आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। कभी अगर आपको लगा कि हाँ इस टीचर के साथ मेरे को सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिला, आप वो कॉल फिर से पूछ लीजिए, कोई दूसरा टीचर आपको और अच्छे तरीके से बताएगा। तो मंथली इज 300 और ईयरली का जो हमारा पैकेज है दैट इज अराउंड 3000। तो मतलब आप जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से देखा जाए तो वी आर लाइक एट अ वेरी वेरी लो टिकट साइज। Okay, and someone is requesting you to add humanities, sociology and economics as subjects. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वी आर इन लाइन।
हम अभी उसके लिए अपना सप्लाई बेस बिल्ड कर रहे हैं। एक बार हमें एक सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्यूटर्स हमारे पास प्लेटफॉर्म पे बैकएंड पर आ गए, फिर हम इसे डेफिनेटली ऐड करेंगे। मतलब 1-2 महीना लगेगा, 1 आध महीना लगेगा हमें ये करने का, क्योंकि हमें बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी ह्यूमैनिटीज को ऐड करने की। लेकिन चूंकि ये मतलब बिकॉज टेक प्रोडक्ट में क्या होता है कि बहुत काम होता है, मतलब लाइक इन्फिनाइट। क्योंकि जैसे मैंने राइज चलाया तो राइज में 500 रेस्टोरेंट होते थे, 1000 रेस्टोरेंट होते थे, यहाँ पर 50,000 रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशनली कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट हम धीरे धीरे चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आई विल डू इट क्विकली। ओके, और फिलो का जो मोडस ऑपरेंडी है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस टू द स्टूडेंट्स, समवन इज आस्किंग कि क्या खाली टेक्स्ट से रिप्लाई मिलेगा या वीडियो प्रॉपर कॉल या वीडियो कॉल होगा, प्रॉपर वीडियो कॉल होगा, यही तो पॉइंट है। हम्म। जैसे जब मैं पढ़ाता था तो मुझे रात को 12 बजे टेक्स्ट आ जाता था व्हाट्सएप पे कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। अब मैंने एक दिन सॉल्व कर दिया, अगले दिन फिर आ गया 12 बजे। मैंने कहा भाई मेरे मतलब ये 12 बजे रात में तुम बैठ के मुझसे फिजिक्स के सवाल सॉल्व करवाओगे, ये तो बड़ा पंगा है। क्योंकि मैं रिप्लाई करता था वहां से आता था कि सर आपने ये स्टेप क्यों लिया, सर आपने ये ऐसा क्यों किया, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है वो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर देते हैं कि जितने भी तुम्हारे दिल के अंदर परेशानियां हैं वो एक बार में बात करके क्लियर कर लो, ताकि तुम्हारा भी टाइम बचे, सामने वाले का भी टाइम बचे, और ना चीजें एकदम स्मूथली पीसफुली निकल जाए। सो इट्स अ प्रॉपर 1-to-1 वीडियो या वॉइस कॉल कन्वर्सेशन। Okay, that's perfect. So one question from my side, Mr. Imbisat. Uh, can you help some NGO to set up Super 30 or Rise Like Institute जो हमारे communities के students के लिए हो? Any day, any day, any day, any day. I would be more than happy to help any NGO. उसके लिए अगर मुझे रात को 12 बजे भी मीटिंग शेड्यूल करनी पड़े तो मैं अपने टाइम से निकाल के वो करूँगा। और Oh, AMP को AMP, thank you so much. Yeah, इसमें मैं thank you कुछ so क्वेश्चन much for देख रहा हूँ, saying मुझे that. कह रहे हैं एनटीएससी या नवोदय के लिए। एब्सोल्युटली यहाँ पर एनटीएससी के लिए आप पढ़ सकते हैं। एनटीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो जाके, इसलिए हमने मेंटल एबिलिटी भी रखा हुआ है यहाँ पर। आप एनटीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप डालें, क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं बैक एंड पर वो लोग वही हैं जिन्होंने एनटीएससी वगैरह में काफी अच्छा स्कोर किया होता है, तो डेफिनेटली दे विल लव टू हेल्प यू। कॉमर्स भी ऐड करेंगे इसमें हम। Okay. Tourism, psychology, disaster management. हाँ मतलब ये सब जो टॉपिक्स अभी एडेड नहीं है, इन्हीं को मतलब एक बार थोड़ा इस पे थोड़ी सी मैं और R&D करके फिर मैं एक बार मैं इन टॉपिक्स को ऐड करूँगा। Okay. So students, don't worry, the topics will be added as and when, and your queries would be answered. So I think we've run with all the questions. A last question from my side again is AMP आपने हमने आपको इंट्रोड्यूस किया, तो आपको क्या लगता है हम कैसे बेनिफिट हो सकते हैं एम्बेसात के टैलेंट से, या how would we go together to develop something for our students? नहीं मतलब वी कैन, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने नाम सुना हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन मैं उतना कनेक्टेड नहीं था। मैं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मतलब हमारी सोसाइटी में जितने ऑर्गेनाइजेशन थे मैं थोड़ा सा चूंकि बस 24 ही घंटे हैं और मैं जो अपने खास लोग हैं मेरे, बस उन्हीं के बीच में दिन भर घूमता रहता हूँ, तो दुनिया जहाँ की थोड़ी सी मुझे खबर कम रहती है। बट नाउ दैट वी आर कनेक्टेड, तो वी डेफिनेटली वी कैन हैव अ सेपरेट मीटिंग फॉर इट। और मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ पे ऑपरेशनल है और क्या कौन कौन सी एकेडमिक एक्टिविटी कर रही हैं, और मैं उन एकेडमिक एक्टिविटी में अपने इनसाइट से जो भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, वो चाहे आपके टीचर्स को ट्रेन करने के रिस्पेक्ट में हो, वो चाहे आपका कोई नया प्रोग्राम सेटअप करने के रिस्पेक्ट में हो, वो चाहे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में हो, या फिर स्टूडेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करने के रिस्पेक्ट में हो, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टिल द टारगेट। क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं टारगेट के बिना काम ही नहीं करता हूँ। इफ यू विल टेल मी कि हाँ ये हम अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, तो सी मतलब जैसे मैंने बहुत सारी मीटिंग्स देखी जहाँ पर मतलब मीटिंग का एक प्लान ये होता है कि हाँ बीच में 10 मिनट के बाद चाय आएगी, फिर कबाब आएगा, फिर ये आएगा, फिर लंच होगा, फिर बिरयानी होगा। मैं वैसी मीटिंग अटेंड ही नहीं करता हूँ। मेरा होता है कि हाँ भाई 12 बजे मीटिंग है, चाहे 4 बजे तक जाए, लेकिन जब तक मुद्दा क्लियर नहीं होता कोई उठेगा नहीं। तो वी आर लाइक वेरी फोकस्ड। आप प्लान्स बताइए या मैं आपको प्लान बता सकता हूँ जिसमें आप टारगेट बनाइए कि ये हमारा टारगेट है कि ये हम 30 बच्चे सेलेक्ट करते हैं और इनको हमको यहाँ पहुँचाना है। तो सिलेक्शन से लेकर वहाँ पहुँचाने तक बिल्कुल, वी आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग लाइक दिस ओनली। या तो आई विल हेल्प। हाँ, जैसे जो बिकॉज़ मेरे अभी स्टूडेंट्स तक यूएस में पढ़ रहे हैं, जब आज से 2 साल 3 साल पहले मैं उनकी एप्लीकेशंस में हेल्प करता था, तो हम लोग रात रात भर बैठ करके 500 वर्ड या 2,000 वर्ड के आंसर्स में एक एक कॉमा और सेमीकोलन चेक करते थे कि वो जगह पर है कि नहीं। तो इफ इट इज रिक्वायर्ड तो वी डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन।
तो अब जितना मेरे पास खुद टाइम होगा मैं करूँगा, लेकिन जितना मैं सामने वाले को ट्रेन कर सकता हूँ, कि अकेले तो इंसान कितना ही कर पाता है, वी नीड अ टीम, so I will be more than happy to do that. Yeah, I would love to have a discussion further with you on this. एंड एक क्वेश्चन था कि प्रोफेसर है इंजीनियरिंग के कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपने बताया ऑलरेडी कि ट्यूटर फेलो, कोई भी ट्यूटर ज्वाइन कर सकता है। सी हमारा पर्पस क्या है फेलो में, एक अच्छी चीज क्या है कि अगर आपको लगता है आपके पास नॉलेज है जो कि आप शेयर कर सकते हैं, वो चाहे जैसे बहुत सारी लेडीज है ना जो घर पे होती हैं, मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं या लेडीज हैं जो कि बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन वो दे आर लाइक वेरी वेल क्वालिफाइड, सो घर पे जो उनके पास फ्री टाइम है दे कैन हाईली यूटिलाइज इट। वो फिलो ट्यूटर ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपनी क्रेडिबिलिटी डालें और हम लोग उसको यहाँ बैकएंड से वेरीफाई कर लेंगे। अगर वेरिफिकेशन में कुछ पंगा हुआ मेरे को मैसेज करें, आई विल पर्सनली लुक इनटू इट, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बैठ के वेरीफाई नहीं करता हूँ, आई हैव अ सेपरेट टीम फॉर दैट। और फिर हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें यू कैन शेयर नॉलेज विच गिव्स लाइक यू कैन ऐड वैल्यू एंड प्लस ऑफ कोर्स यू कैन मेक सम डिसेंट अर्निंग एज वेल। ओके, परफेक्ट। और जो थोड़े ज्यादा प्रोफेशनल टीचर्स हैं, दे कैन ड्रॉप मी अ मेल, आई कैन क्रिएट अ सेपरेट क्लास फॉर देम एज वेल, वेयर जहां पर उनका मॉनेटरी रेम्यूनरेशन भी ज्यादा होगा और बच्चे भी उनसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ओके, और एक फेसबुक लाइव का हमारा एक क्वेश्चन आया है कि क्या लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है आपकी ये ऐप? हाँ, एनी लैंग्वेज। सी जब आप ऑनबोर्ड करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप लेट से डालेंगे उसमें इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, तो हमारा एल्गोरिथम कोशिश करेगा कि ट्यूटर भी जब ऑनबोर्ड होता है तो उससे भी हम पूछते हैं कि व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, तो उसने डाला हुआ लेट से इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको कनेक्ट करते हैं दो बांग्ला बोलने वालों को, क्योंकि सी जैसे मैंने कश्मीर में पढ़ाया ना, तो मेरे को समझ में आया कि अगर कश्मीर के स्टूडेंट्स को कश्मीरी में फिजिक्स पढ़ाई जाए वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हमें फिजिक्स पढ़नी है, डिफिकल्ट चीज़ है, अब बंदा उसको अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन टीचर मान लीजिए सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा है, या उसको हिंदी नहीं आती है, टीचर मान लीजिए सिर्फ हिंदी बोल रहा है, तो एक तो फिजिक्स टफ है और ऊपर से आपने एक और लैंग्वेज बैरियर डाल दिया, तो टफ चीज को आपने 2 टाइम्स और टफ कर दिया। तो इसीलिए लैंग्वेज का कोई लिमिट नहीं है, वी हैव ट्राइड टू इन्वॉल्व ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज व्हिच आर लाइक मोस्टली स्पोकन इन द कंट्री। फेयर ना, तो वीडियो से ही सारा कॉलिंग रहेगी, सारा लेक्चर वीडियो से रहेगा, वन थिंग इज फॉर श्योर। और सेकंड कि जो लैंग्वेज आप बोलते होंगे, जिस लैंग्वेज में आप चाहेंगे उसी लैंग्वेज में आपको टीचर, जब इतना कस्टमाइजेशन हो रहा है तो व्हाई नॉट द लैंग्वेज। थैंक यू सो मच मिस्टर इम्बिसात अहमद, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन, दो आई फाइंड वन मोर। ऐप का नाम एक बार और बता दीजिए। ऐप का नाम फिलो, या FILO, फिलो। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, मतलब गूगल एंड्रॉइड और एप्पल iOS दोनों में ये अवेलेबल है। बहुत जल्दी इसका हम वेब वर्जन में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि बच्चा फोन पे पढ़ने में थोड़ा परेशान हो जाता है, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पढ़ना आसान होता है, तो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स इसका वेब वर्जन दिया जाएगा कि आप लैपटॉप बैठ करके आराम से जो सारा काम आप फोन से करते थे वो काम आप लैपटॉप से कर सकते हैं इंशाल्लाह। And you have got the mail ID of Mr. Imbisat @findphilo.com, but make sure to ask the genuine queries, not like which would not be a wastage of time for him. How can we contact you? He has given the mail ID. Please contact via mail only. So thank you so much, Mr. Imbisat. It was a very informative and a very motivating lecture that you have given, and you have given a very good insight about how a student perceives knowledge seeking and career, and how can he really bring a change to his thought process so as to make a difference in the society and for his life as well. Thanks a lot for coming to us with a guest. We are honored to have you, and we would definitely be in touch with you for further programs of AMP, and as well as something to do for the society, for the community as a whole. Thanks a lot. So much. I thank all the attendees and the other panelists. Pleasure. Thanks a lot, Mr. Imbisat. So we are now officially closing the call. Thank you very much once again. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you.